Hello everyone, welcome to this session. In this video, we will discuss some concepts of class 9 mathematics, that is number system. So, we all know in our previous class we all are acquainted with number system. The counting numbers we all know that starting from 1 to infinity, that is 1, 2, 3 up to infinity, and we all know these numbers are denoted by n stands for natural numbers. When we add 0 here, 0, 1, 2, 3 up to infinity, that number system is called whole number and it is denoted by W. Then after the introductions of negative numbers, that is -1, -2, -3 up to infinity, we have another number system that is Z. बच्चों इसका नाम, ये तो इंटीजर है, ये जो नंबर है इसको इंटीजर कहते हैं, बट इट इज डिनोटेड बाय Z बिकॉज दिस टर्म Z was derived from a Greek word zehlon which means to count. That's why it's denoted by Z. Okay, then after the introduction of other numbers, that is some fraction, that is 1 by, suppose I take 1 by 2, that is -1 by 2 also, 3 by 4, such numbers that are expressed in the form of P by Q, and we denoted it as rational numbers and it is denoted by Q. So, all total natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers are called, all are included in rational numbers. Except these numbers, there are also other numbers that we find in our chapter स्क्वायर रूट, क्यूब रूट. जब हम पढ़ रहे थे तब हमने कुछ ऐसे नंबर दिखे थे जैसे कि आई राइट √2, √3, √5, जिनकी जो स्क्वायर रूट है हम निकाल नहीं पाए थे. बेसिकली द नंबर अंडर रूट मस्ट बी प्राइम नंबर, it must not be perfect square. मगर अगर if I write √4, so it will be 2, that will be a rational number, but this is not. Only √2, √3, √5 and pi is also a number जिसको हम पढ़ेंगे बाद में. तो ये जो नंबर्स है इनके बाद इनको हम irrational नंबर कहते हैं and it is denoted by Q dash. Clear? ये रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑल टोटल कंस्टिट्यूएंट्स रियल नंबर्स. हमारी जो इस चैप्टर में हम बेसिकली रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे, बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. बच्चों हमारा नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी इमेजिनरी नंबर से जो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे. तो बेसिकली अप टू क्लास 9 हमें बस रैशनल नंबर पढ़ना है और इरेशनल नंबर पढ़ना है. ओके, सो हमने डेफिनेशन भी पढ़े थे रैशनल नंबर की. वी नो द नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. सो इरेशनल नंबर क्या होगी, उसकी अपोजिट, दोज नंबर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. क्लियर? Not only this way, in some other way we also can differentiate rational number and irrational number, that is by decimal expansion of these numbers. Okay, so next understand decimal expansion of numbers. Just a minute. Let us see a decimal expansion of some real numbers. Okay, suppose let's take an example, that is 5 by 2. 5 by 2 is a rational number, it's a take it a real number. अगर हम इसका decimal expansion करें, it will be 2.5. Okay, let's take another example, that is 3 by 4. If we represented it in decimal, बच्चों आपको प्रीवियस क्लास में हमने डेसिमल एक्सप्रेशन सीखा था, तो उस हिसाब से अगर हम 3 by 4 को लिखें, इट विल बी 0.75. ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ये यहाँ पे स्टॉप होती है.
इट स्टॉप्स, उसके बाद कोई नंबर नहीं आता है, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, दे हैव ए एंडिंग हियर. ओके, another, if I take another example, let's take an example 10/3. अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कैसा आएगा? वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा. Yes, it will be 3.3333. Right. If I take another example, that is 2/3, it will be 0.6666. बच्चों ये अप टू इन्फिनिटी, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, बट यहाँ पे जो नंबर्स है ये रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटेटिंग. जो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं. बच्चों हमारे यहाँ ऐसे भी नंबर्स है, हमने जो पढ़ा था क्लास 8 में, जो √2 की वैल्यू, अगर हम √2 की स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाले, सो इट विल बी 1.4142 अप टू इन्फिनिटी. हमने √3 की भी वैल्यू निकाली थी, दैट विल बी 1.732 अप टू इन्फिनिटी. और यहाँ पे ये जो नंबर्स है डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ये रिपीट नहीं हो रहे, तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. तो बच्चों बेसिकली हमारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग. जो डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाते हैं उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं. जो खत्म नहीं होते, डेसिमल की जो पोजीशन है वो इन्फाइनाइट तक चलती है, उनको रिकरिंग कहते हैं, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. अगर ये नंबर रिपीट होता है तो इसको रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग तो नॉन रिकरिंग. ओके बच्चों, यहाँ पे एक नंबर है पाई. वी ऑल हियर द नेम ऑफ पाई. पाई की जो वैल्यू है डिफरेंट मैथमेटिशियन ने उसकी वैल्यू डिफरेंट बताई है. पहले तो ये जो पाई की वैल्यू आर्किमिडीज ने दिया था, ग्रीक मैथमेटिशियन आई, इसके सिंबल भी उन्होंने दिया था, सॉरी. तो आर्किमिडीज जो है उन्होंने पहले पाई को इंट्रोड्यूस किया था. पाई की जो वैल्यू डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट दिए थे. सम सेड इट मे बी 22/7, इट मे बी 3.14 और √10 एक्सेट्रा. बट एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पाई इज, जो सुपर कंप्यूटर से उसकी पाई की जो वैल्यू उन्होंने निकाली है अप टू 10 ट्रिलियन टाइम्स. बट द नंबर आफ्टर डेसिमल position is non-terminating and non-recurring, and that is why pi is called an irrational number. So basically what we have discussed, we discussed the numbers that can be expressed in form of p/q form are rational numbers. So I can say that rational numbers can be expressed in p/q form, but irrational numbers cannot be expressed in p/q form. एंड द सेकेंड थिंग, अगर हम डिफाइन करें रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग एंड इट मे बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग. बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग. दोज नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. क्लियर बच्चों? ये जो पाई है, देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाई. पाई की जो हिस्ट्री, तो ब्रीफ हिस्ट्री है. Some interesting fact related to pi I really want to say, that is pi की जो वैल्यू है 3.14. pi is an irrational number which value is approximately 3.14159, and that is why 3 for March and 14 March, that's why 14th March is celebrated as Pi Day. And the coincidence is that in 14th March Albert Einstein was born, and another coincidence that Stephen Hawking died on the same date, that is 14th March. And still the value of pi is not the real value. There are lots of things we need to know about pi, and that we will discuss in, you can know in your later classes. So in the next video we will अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज. आपने प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर पढ़े हैं, इस क्लास में जो न्यू टॉपिक है, न्यू कंसेप्ट है, इरेशनल नंबर,
जैसे ही रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ है उसी तरह इरेशनल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।